Good morning to all of you. This is Neha, your course teacher, with this introductory acrometeorology and climate change. And your course number is AMAT 5311. Okay, so today I have come up with a new lecture, which is atmospheric humidity. Okay, so basically we will talk about three important types of humidity. Okay, so let us start. Okay, so humidity, what is humidity? The amount of water vapor that is present in atmosphere इज नोन एज एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी. ठीक है, ऐसा मतलब वाटर वेपर का जो अमाउंट है, जो वाष्प का जो अमाउंट है, जो हमारे एटमॉस्फेयर एयर में प्रेजेंट होता है, हम उसको एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर या एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कहते हैं. ओके, so we will talk about some absolute humidity. Okay, so what is absolute humidity, then relative humidity, specific humidity. So first we take absolute humidity. Okay, so lots of students become confused among these three different types. So yes, let us have a kind of general idea about the humidity and types of humidity. Okay, so basically the amount of water vapor that present in atmosphere is simply known as atmospheric moisture or humidity. Okay, so what is humidity? Humidity is, in simple terms we can say, it's the amount of moisture that a air partial can hold. ओके, एंड दैट्स वी आर डिटरमाइन एज ह्यूमिडिटी. ठीक है, एक ऐसा वाष्प का एक कण या मॉइस्चर का एक कण जो हमारा जो एयर है, जो फ्लो कर रहा है, ब्लो कर रहा है, वो अपने पास होल्ड करके रखता है, दैट्स वी आर डिटरमाइन एज ह्यूमिडिटी. ओके, सो नाउ ओके, फर्स्टली हम देखते हैं कि सैचुरेशन क्या है. सो व्हाट इज सैचुरेशन? So saturation is another term that commonly we use. Okay, it is very important for to understand humidity, absolute humidity and specific humidity. So we need to understand first that what is saturation. Okay, so saturation is saturation is another term that commonly we can use. So saturation means that air partial is available to hold maximum water vapor at given temperature, is as we call saturation. Okay, so now what would happen as the temperature rises? As the temperature rises, the water holding capacity would increase. So that's how we understand the term saturation. Okay, तो क्या है सैचुरेशन? सैचुरेशन एक ऐसा बैलेंस है जो एक गिवन टेम्परेचर में हम जो वाटर एयर पार्शल जो होता है, जो एयर ब्लो कर रहा है, वो अपने पास मैक्सिमम जो वाटर वेपर है, ठीक है, वाष्प है, उसको अपने पास क्या करता है, होल्ड करके रखता है एक गिवन टेम्परेचर में, एक यूनिट टेम्परेचर में. ठीक है, so that would happen as temperature rises, and the temperature rises, the water holding capacity would increase. Okay, so that's how we understand the term saturation, or we call that saturated humidity, saturated absolute humidity, saturated relative humidity as well as. Okay, so then what specific specific humidity. So the humidity is basically, what can we understand that humidity what? So the humidity is basically the amount of the capacity to hold the moisture from air parcel, we could say. Is simple, we can understand the humidity is the amount of water vapor or capacity to hold the moisture from air parcel. ठीक है, एक जो एक ऐसी क्षमता है वाटर वेपर की, जो वो एयर पार्सल जो है उसको अपने में होल्ड करने की जो क्षमता है, उसको किसको, वाष्प को, उसको हम कह सकते हैं कि वो सिंपल टर्म पे ह्यूमिडिटी है. ठीक है, तो अगर हम सिंपल टर्म पे ह्यूमिडिटी को समझे तो वी कैन से इट इज अ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट अ एयर पार्सल कैन होल्ड, दैट्स वी आर डिटरमाइन एज ह्यूमिडिटी. ओके, so coming to the next, which is specific humidity. ओके, सो व्हाट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम कैसे समझेंगे? सो द नेक्स्ट now we can some examples is here. Now
A lot of students are confused between the specific humidity and mixing ratio. Both are same as well as, okay, some some units are different. ठीक है, so specific humidity क्या है? Weight of water vapor per unit weight of moist air. It is expressed as gram of water vapor per kilogram of air. ठीक है, जो पर किलोग्राम एयर में जो भी वाटर वेपर जो होगा वो प्रेजेंट होगा, उसको हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं. ठीक है, सो द रेशियो ऑफ मास ऑफ द वाटर वेपर टू द एयर पार्सल दैट इज डिवाइडेड बाय मास ऑफ द टोटल एयर पार्सल, वी कैन से दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. ठीक है, कि रेशियो ऑफ द मास ऑफ द वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट इन एयर पार्सल डिवाइडेड बाय मास ऑफ द टोटल एयर पार्सल, it is called the specific humidity. Okay, so it is expressed gram of the water vapor present in total air parcel. ठीक है, so इसका यूनिट अगर हम लें तो ग्राम पर केजी है. एयर इज कॉल्ड स्पेसिफिक humidity. Okay, so moving on. Mixing ratio. So the ratio of mass of the water contained in a sample of moist air to mass of dry air, it is expressed as gram of water vapor per kilogram dry air. Okay, it is similarly it is same as specific humidity, but क्या होता है इसमें, जो ड्राई एयर मॉइस्ट एयर जो होता है डिवाइडेड बाई ड्राई एयर हो जाता है. द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द वाटर वेपर कंटेंट इन अ सैंपल ऑफ मॉइस्ट एयर, ठीक है, टू द मास ऑफ ड्राई एयर. ठीक है, और बेसिकली इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ग्राम ऑफ द वाटर वेपर पर किलोग्राम ड्राई एयर. ठीक है, तो जो ड्राई एयर है उसमें ड्राई एयर के पर किलोग्राम में कितना ग्राम वाटर वेपर मौजूद है. ठीक है, 1 किलोग्राम ड्राई एयर में कितना ग्राम वाटर वेपर मौजूद है. ठीक है, इस रेशियो को, किसके रेशियो को? मॉइस्ट एयर के रेशियो को ड्राई एयर के रेशियो से हम जब कंपेयर करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पर किलोग्राम ड्राई एयर में कितने ग्राम मॉइस्ट एयर जो है उसका रेशियो है, प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं मिक्सिंग रेशियो. ओके, so next is we coming to the next, which is relative humidity. Okay, so what is relative humidity? So now since it is relative, it's expressed in percentage, we could say. So that's the key aspect here. What is relative humidity? It is expressed to the percentage, we can say. So the ratio between the amount of water vapor present in a given volume of air and the amount of water vapor required for saturation under fixed temperature and pressure. So there are no units and this is expressed as percentage. So basically we can say that relative humidity, what is relative? Relative, it's expressed in percentage. So that is the key aspect here. Okay, so remember this point, always remember this point. See, it is expressed as a percentage. So the ratio between amount of water vapor. So okay, so now this could be 100%. okay, now हम समझ सकते हैं कि ये 100% है, that's mean 100% saturation is there. If 0%, that's mean not at all saturated, कोई saturation नहीं है वहाँ पे. ठीक है, सो वी कुड अंडरस्टैंड फॉर दिस एग्जाम्पल कि अगर 100% है मॉइस्चर वहाँ पे, ठीक है, तो हम उसे कह सकते हैं कि सैचुरेशन है उस पॉइंट पे. ठीक है, सैचुरेटेड है, बैलेंस है. और अगर 0% है तो वो सैचुरेटेड नहीं है. ठीक है, सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टेम्परेचर. दिस इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अफेक्टेड बाय बोथ, okay, which is changes in temperature and amount of water vapor contained, we could say. Okay, so it is the function of, basically it is a what? It is a function of both the changes of temperature and water vapor content is that present. Okay, so ratio between amount of water vapor present in a given volume of the air and the amount of the water vapor which is saturated
अंडर द फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर और एक फिक्स्ड प्रेशर में अगर हम जो देते हैं अमाउंट ऑफ जो वाटर वेपर जो प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वो जब सैचुरेटेड पॉइंट में पहुंच जाता है, किस कंडीशन में, जब एक फिक्स टेम्परेचर और एक फिक्स प्रेशर उसको रिक्वायर्ड होता है। ओके, सो इट इज द फंक्शन ऑफ बोथ द चेंजेस ऑफ टेम्परेचर एंड वाटर कंटेन्ड इज दैट प्रेजेंट वी कुड से। ओके, सो हाउएवर relative humidity was independent the temperature changes, but it is varied the volume that was given, we could say. Okay, and then in other terms it is the ratio of air water vapor contained to its maximum water vapor capacity at a given temperature expressed in percentage। अगर हम इसे अलग तरीके से समझे तो कैसे समझेंगे कि जो हवा में, वायु में जो वाटर वेपर कंटेंट है, ठीक है, जो वाटर वेपर जो एयर पार्सल ने होल्ड करके रखा है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी है एक गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है, जिस उसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, बेसिकली हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को परसेंटेज से एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो ऐसा एयर पार्सल में मौजूद, एक गिवन टेम्परेचर में मौजूद ऐसा वाटर वेपर जिसकी एक मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी हो एयर पार्सल की, जिसको हम किस में डिनोट करते हैं, परसेंटेज में। सो दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, सो द रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिव्स ओनली द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द एयर। व्हाई सैचुरेशन ऑफ द एयर? बिकॉज द द सैचुरेटेड कंडीशन में हम उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर, अंडर द फिक्स टेम्परेचर एंड फिक्स प्रेशर में जब हम उसे देते हैं, ठीक है, वाटर वेपर को, तो हम देखते हैं कि वो एयर पार्सल उस वाटर वेपर को एक निश्चित तापमान पर और एक निश्चित दबाव में कितना, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, जिसको हम मेजर करते हैं परसेंटेज से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलेंगे। सो द रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिव्स ओनली द डिग्री ऑफ द सैचुरेशन ऑफ द एयर। ठीक है, तो एक ऐसी हम अगर उसे समझें, सो बेसिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैन एक्सप्लेन द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर that's present of the water vapor divided by present in the mixture where you have a saturated vapor pressure that is given। ठीक है, so the relative humidity of saturated air is 100%। ठीक है, अगर सैचुरेटेड कंडीशन में अगर हम देखें वाटर वेपर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी है, तो वो 100% होगी। ठीक है, और अगर 0% किसी की रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, दैट मीन सैचुरेटेड कंडीशन नहीं है वहाँ पे। ठीक है, असैचुरेटेड, नॉट एट ऑल सैचुरेटेड कंडीशन वी कुड से। ठीक है, वहाँ पे सैचुरेटेड कंडीशन नहीं है, हम कह सकते हैं। ओके, so what is relative humidity? So we can understand, so basically relative humidity can explain the ratio of partial pressure that's present of the water vapor, okay, divided by present in the mixture where have a saturated water vapor pressure that is given। Okay, this is called relative humidity। Okay, so moving on, dew point temperature। so let us see what is dew point temperature। dew क्या होता है? ओस की बूंदों को हम क्या कहते हैं? dew कहते हैं। ठीक है, so the temperature to which a given partial of air must to be cooled in order to become saturation at constant pressure and water vapor contained। ओके, सो एक गिवन टेम्परेचर पे अगर एयर पार्शल में जो एयर पार्शल क्या है, कूल हो जा रही है, क्यों? क्योंकि उसके गिवन टेम्परेचर में वो वाटर वेपर जो है, जितने वाटर वेपर की सैचुरेटेड कंडीशन क्रिएट हो रही है, सैचुरेशन हो रहा है, ठीक है, सैचुरेटेड हो रही है क्या, वाटर वेपर, किसमें, एक गिवन टेम्परेचर में, किस में मौजूद, एयर पार्शल में। ठीक है, तो एक क्या हो रहा है, वो उसकी वजह से कूलिंग हो रही है, कूल होने के बाद जो है वो ड्यू पॉइंट, ठीक है, ड्यू बन रहा है, ओस बन रहा है, तो उस जो वो
ओस बनने की जो फिनोमिना जिस टेम्परेचर पे घटित हो रही है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. सो इन दिस केस द इनविजिबल वाटर वेपर बिगिंस टू कंडेंस इनटू विजिबल फ्रॉम लाइक वाटर ड्रॉपलेट्स. ठीक है, तो ये जो है वाटर वेपर जो है एयर पार्सल में जो भी मौजूद है, जो एक गिवन टेम्परेचर में कूल हो रहा है, और क्या किस किस तरीके से बदल रहा है, वो चेंज हो रहा है ड्यू की जैसे. ड्यू मतलब ओस की बूंदों के जैसे. ठीक है, सो वो जो नॉर्मल वाटर वेपर रहता है जो इनविजिबल होता है, ठीक है, लेकिन जब हम उसे एक टेम्परेचर पे, एक गिवन टेम्परेचर में जो मॉइस्ट एयर जब ठंडी हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, सैचुरेटेड कंडीशन क्रिएट हो जाता है. ठीक है, सैचुरेटेड कंडीशन क्रिएट हो जाता है, तो इनविजिबल वाटर वेपर है वो क्या हो जाता है, विजिबल वाटर ड्रॉपलेट्स में हमें दिखाई देने लगता है. तो उस टेम्परेचर के पॉइंट को जिसमें वो इनविजिबल वाटर वेपर जो है कूल होके विजिबल वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में एक गिवन टेम्परेचर में जिस फॉर्म में वो चेंज होता है, उस टेम्परेचर को या उस पॉइंट को या उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ओके, सो दिस इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वी कुड अंडरस्टैंड. एंड what the comes next is vapor pressure deficit. so what is vapor? ठीक है, वाष्प. वाष्प क्या है, जो हवा में जो भी मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, जो हमारे एयर पार्सल में जो भी मॉइस्चर जो भी है वो अवेलेबल है, वो वाष्प है. ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर विच इज ऑल्सो कॉल्ड SVP, ठीक है, एंड एक्चुअल वेपर प्रेशर विच इज AVP एट अ गिवन टेम्परेचर. ठीक है, तो ये किसके बीच का डिफरेंस है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर और एक्चुअल वेपर प्रेशर के बीच में जो भी टेम्परेचर में अंतर आता है, सॉरी हाँ, टेम्परेचर में जो भी अंतर आता है, सॉरी प्रेशर में जो भी अंतर आता है, ठीक है, सॉरी, जो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एंड एक्चुअल वेपर प्रेशर के बीच में जो भी डिफरेंसेस है, किसमें डिफरेंसेस है, प्रेशर में डिफरेंस है. प्रेशर में जो भी अंतर आता है, क्यों आता है, एक गिवन टेम्परेचर पे, या हम कह सकते हैं एक सैचुरेटेड टेम्परेचर पे जो भी अंतर आता है उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर डेफिशिएट. ठीक है, so this is another measure of moisture in atmosphere which is useful in crop growth studies. ठीक है, so ये moisture इस वजह से हम humidity जो है इस वजह से स्टडी करते हैं क्योंकि ये हमारे क्रॉप के लिए बहुत एसेंशियल है. एक पर्टिकुलर मॉइस्चर में ही हमारा क्रॉप जो है जर्मिनेट करता है. ठीक है, स्टोमेटा जो है वो ओपन होता है. जो रेस्पिरेशन का जो भी प्रोसेस है वो जो ह्यूमिडिटी की वजह से या वाटर वेपर प्रेशर की वजह से ही क्रिएट होता है. ठीक है, तो सारे जो फिजियोलॉजिकल फिनोमिना हैं वो डिपेंड करता है किस पे, ह्यूमिडिटी पे या एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर पे. इस वजह से हम इसे यहाँ अच्छे से पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज एन अनदर मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेरिक विच इज यूजफुल इन आवर क्रॉप प्रोडक्शन, आवर क्रॉप ग्रोथ स्टडीज. व्हेन एयर कंटेन्स all the moisture that it can hold to its maximum limit, it is called as saturated air. Otherwise it is called unsaturated air at that temperature. ठीक है, जब एयर जो होता है वो एक मॉइस्चर को क्या करता है, होल्ड करके रखता है. ठीक है, सो वो जितना मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है उसके जितना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मैक्सिमम जो वाटर वेपर है, ठीक है, वाटर वेपर को जो होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो पॉइंट होता है सैचुरेटेड, बोल सकते हैं उसको, सैचुरेटेड पॉइंट होता है और हम उसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड एयर. ठीक है, और अगर इससे विपरीत होता है, अपोजिट होता है, सैचुरेशन कैपेसिटी नहीं होती गिवन टेम्परेचर में, एक निश्चित तापमान में, तो वो कंडीशन क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड कंडीशन कहलाता है. तो हम उसे क्या कह सकते हैं, अनसैचुरेटेड एयर कह सकते हैं. ओके, सो द वेपर प्रेशर क्रिएटेड एट द टेम्परेचर अंडर सैचुरेटेड कंडीशन इज वेपर प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर. ठीक है, सो जो भी वेपर प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, सैचुरेटेड कंडीशन में एक गिवन टेम्परेचर में, हम उसको सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कह सकते हैं. ओके, एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो व्हाट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? सो कैसे समझ सकते हैं हमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? सो
always remember absolute humidity, a mass of water vapor. Okay, so a mass of, listen very carefully, a mass of water vapor which is present per volume of the air. Okay, so absolute humidity क्या होता है, measures in grams per cubic centimeter, ठीक है, या पर क्यूबिक मीटर ऑल्सो. सो वाटर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, वी कैन से दैट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज अ मास ऑफ वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट वॉल्यूम विच इज प्रेजेंट इन पर वॉल्यूम ऑफ द एयर. ठीक है, मतलब हम इसे कैसे मेजर करते हैं, ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर या ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से हम इसे एक्सप्रेस्ड करते हैं. किसको एक्सप्रेस करते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को. ओके, so that's how we understand the absolute humidity. Okay, so that's mean if the volume of the air partial changes, it would affected absolute humidity, and then okay, and then therefore absolute humidity is accounted by a change of volume of the air partial per unit volume. ठीक है, presence of the per unit volume of the air we can understand absolute humidity. So now absolute humidity usually ranges around 0 to 30 gram per cubic centimeter or 0 to 30 gram per cubic meter. Okay, this is also the very important point. ठीक है, तो आज हमने ह्यूमिडिटी देखा कि क्या क्या होता है. ह्यूमिडिटी के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं. क्या क्या होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है, एंड देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है. ठीक है, ये 3 टाइप्स है, इसके मेजर टाइप्स है वैकेंट से. एंड मिक्सिंग रेशियो होता है. ठीक है, सो मिक्सिंग रेशियो जो होता है वो कैसा होता है, सिमिलरली स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की तरह होता है, बट मिक्सिंग रेशियो को हम क्या करते हैं, ग्राम पर केजी में जो एयर का मिक्सिंग होता है, ठीक है, एक गिवन टेम्परेचर पे, उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सिंग रेशियो बोलते हैं. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको ह्यूमिडिटी समझ आया होगा. ठीक है, ह्यूमिडिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे क्रॉप ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल है. ठीक है, तो ये हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है. सो आई होप यू ऑल गॉट द सेंस. आज के लिए बस इतना ही था. ठीक है, हम इसे पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि हम इसे एक साथ पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा. ठीक है, तो आप ये रिवाइज करेंगे कि व्हाट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी एंड. ठीक है, और अपना कन्फ्यूजन दूर करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. एंड थैंक यू वेरी मच. एंड टिल देन टेक केयर, बी सेफ. थैंक यू.